Hello everyone, welcome to the another episode where we are talking about lifestyle, luxury and smart investments. And joining me today is someone who knows landscape more than Google Maps. So we are having Nishant with us from Global Acres. Hi Nishant, how are you doing? All well, Divya. How are you? I'm doing great. Thank you for being with us on this show. So Nishant, very happy to have you here. I just want to know, being a realtor, how is your life going? How have you started your journey of real estate and now where it is taking you nowadays? So Divya, being a realtor is always challenging, as you know, because you have been in this field. You know, daily new customers, new calls, new leads, and new challenges. So I've been in real estate for last 3-4 years now. So I started my career in banking. I worked there for around 8 years. I worked with Citibank, then HSBC. So for Citi, I used to work for developer piece. Basically, I was responsible for empaneling all the new projects which are coming in Gurgaon. So I used to take care of the legal part of that particular thing. Then I started my real estate journey after leaving HSBC. So far, so good. Or we are currently working in Gurgaon, Goa, and 2 more markets, Dholera and Navi Mumbai. Very nice. Staying in Gurgaon and you're working for 2-tier, 3-tier cities, what makes it more special to working there? So if I talk about Gurgaon is more of a corporate market. So we have jobs here. That's why the demand of real estate goes on. We hear every year, price keeps on increasing. And so I was, basically located in Gurgaon when I was working in banking. So I started my real estate career from Gurgaon only. So then I noticed कि गोवा की जो मार्केट है, गोवा was always an emerging market. So अगर हम बीचेस के आसपास की मार्केट देखें, नॉर्थ गोवा में या साउथ गोवा में रियल एस्टेट की बात करते हैं, सो दैट वाज ऑलवेज गोइंग ऑन वेल. अभी कुछ नए पॉकेट्स इमर्ज हुए हैं गोवा में, जैसे कि नॉर्थ गोवा में अब मोपा एयरपोर्ट के आसपास की कनेक्टिविटी देखते हैं, जो NH66 से हमें गोवा और महाराष्ट्र बॉर्डर पे हमें कुछ पॉकेट पे नए डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं. गवर्नमेंट का कुछ पुश देखने को मिला है. वी टॉक अबाउट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग in around Mopa Airport. That was very insightful. Your journey, your experience is very insightful. Asha, I keep on listening to people about the new Goa, North Goa 2.0. So what actually it means? So Divya, Goa is not just about beaches now. जब से WM के बाद गोवा गवर्नमेंट ने मोपा एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट किया है एंड उसको ऑपरेशनल किया है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट गोवा इज नाउ बिकमिंग अ बिजनेस प्लस लाइफस्टाइल हब, बिकॉज गोवा गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड्स more IT jobs, more convention center, 5-star hotels, resort, premium villas near Mopa Airport. एंड उसका क्या रीज़न है, उसमें वहाँ पे आप देखेंगे जब आप एग्जिट करते हैं मोपा एयरपोर्ट से, तो आपको राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन मिलती है. मैजेस्टिक प्राइड वहाँ पे आ रहा है. आप फिर लेफ्ट साइड पे देखते हैं एरोसिटी की कंस्ट्रक्शन चल रही है. फिर आप थोड़ा सा आगे आते हैं धारगल में, आपको यूसी डेल्टन ने एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल लिया फॉर लैंड कसिनोज. सो यू सी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच आर ऑपरेशनल राइट नाउ नियर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दैट्स वाई वी सी the place in next 3 to 5 years at different level, because आप वहाँ पे आप देखेंगे, आप 5 से 7 साल के अंदर पूरे डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे. निशांत, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि 100 एकर्स का भी कोई डेवलपमेंट वहाँ पर डेल्टन जैसा इतना बड़ा ब्रांड लेकर आ रहा है. व्हाट मोर डेवलपमेंट्स आर कमिंग अप देयर? कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दैट सो दैट आवर व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट? सो दिव्या, इफ वी सी मोपा एयरपोर्ट पे अभी अराउंड 25 गेट्स हैं. सो दोज गेट्स आर एक्सपेंडिंग टू 60. सो आप अगर देखोगे मोपा एयरपोर्ट के आसपास आपको पूरा कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई देगा. तो एयरपोर्ट इज एक्सपैंडिंग एंड बाहर निकलते ही हमें सब 1500 एकर्स के आसपास गोवा में एरोसिटी, जैसे हमें दिल्ली में एरोसिटी देखने को मिलती है, उसी लाइंस पे हमें एरोसिटी देखने को मिलेगी. उस एरोसिटी में IT SEZ के लिए स्पेसेस होंगे. सो वहाँ पे IT जॉब्स आएंगी. उसके अलावा आप जब थोड़ा सा आगे जाते हैं धारगल में, इट्स जस्ट 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम मोपा एयरपोर्ट. वहाँ पर आपको BCCI एंड GCA के एक कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा. सो एक और क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसका IPL मैचेस होंगे, इंटरनेशनल मैचेस होंगे. सो वो भी मोपा एयरपोर्ट के आसपास होंगे. देन अगर हम राइट जाते हैं टुवर्ड्स महाराष्ट्र, तो चिपी के आसपास आपको फिल्म सिटी का काम बहुत जल्दी नजर आएगा. वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. सो गोवा गवर्नमेंट इज focusing more on job generation so that they do not depend solely on the tourist for their economy. So basically वहाँ पे job generation का काम चल रहा है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट is trying to make सावंतवाड़ी एंड सिंधुदुर्ग एज द टूरिस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया. सो वहाँ पे वो डेवलपमेंट चल रहा है. सो अगर हम दोनों डेवलपमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, सो मोपा एयरपोर्ट स्पेसिफिकली फॉल्स बिटवीन बोथ. सो इधर गोवा हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया. मोपा एयरपोर्ट इज इन सेंटर, और इधर गोवा की डेवलपमेंट चल रही है, इधर महाराष्ट्र की डेवलपमेंट चल रही है. सो दैट आई बिलीव इज अ बेस्ट पॉकेट टू इन्वेस्ट इन राइट नाउ नियर मोपा एयरपोर्ट. सो निशांत, आपने जो डेवलपमेंट्स मुझे अभी बताए हैं, आई थिंक दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. और अगर किसी भी सिटी में या किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट्स प्लान्ड हैं, दैट मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है. राइट. व्हाट डू यू थिंक कि गोवा टूरिज्म पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
सो दिव्या, कोविड के बाद हमने एक ट्रेंड देखा है कि पीपल आर स्पेंडिंग मोर ऑन रियल एस्टेट, बेसिकली सेल्फ यूज़ के लिए भी एंड सेकंड होम के लिए भी. सो अगर हम लास्ट 5 साल का ट्रेंड देखें तो अराउंड 9 मिलियन पीपल आर विजिटिंग गोवा एवरी ईयर एंड 9 मिलियन इज 6x ऑफ गोवा पॉपुलेशन. सो अगर हम फ्यूचर में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, सो रियल एस्टेट जितने इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बेसिकली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नियर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट वुड डेफिनेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट विच आर गोइंग राइट नाउ. सो मुझे लगता है 9 मिलियन से नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज इफ वी थिंक अबाउट बीच इन इंडिया, वी थिंक अबाउट गोवा. And I think people are more towards a peaceful life and life within the nature. And I think that's why Goa real estate is booming. That could be one of the reason. निशांत, मैंने यूजुअली लोगों से सुना है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि अगर कोई या फिर जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, कि अगर कोई एयरपोर्ट के नियर बाय में ज़मीन खरीदता है तो ओवरनाइट तो नहीं कह सकते, बट हाँ, वो आने वाले टाइम में ज़रूर मिलियनर बनता है. तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मोपा के आसपास जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या चांसेस हैं? डेफिनेटली दिव्या, अगर आप रीसेंट पास्ट में भी देखोगे तो बैंगलोर में कैंपागोड़ा एयरपोर्ट बना, उसके आसपास प्राइसेस देखिए कैसे शूट अप हुए हैं. उसके अलावा आप हैदराबाद में शमशाबाद एयरपोर्ट बना, मुंबई में अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है. सो मुंबई 3.0 की एक अलग स्टोरी चल रही है. सो अगर आप ये 3 एग्जांपल भी ले लो तो मोपा एयरपोर्ट की स्टोरी मुझे लगता है दिस विल क्रिएट हिस्ट्री. मतलब यहाँ पे जो लैंड प्राइजेस होंगे आने वाले टाइम में, यू वोंट बिलीव जो आज प्राइजेस हैं और जो आने वाले 5 साल के जो प्राइजेस होंगे बहुत ऊपर होंगे. ओके निशांत, आफ्टर नोइंग ऑल दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम यू, जितना भी नियर बाय का ग्रोथ आपने मुझे बताया, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अट्रैक्टिव. बट एक इन्वेस्टर को हमेशा रिटर्न्स चाहिए होते हैं, उसको रिटर्न समझ में आता है. राइट. तो एज ए इन्वेस्टर अगर कोई वहाँ पर अपने फंड्स इन्वेस्ट करता है, डू यू रियली थिंक कि आने वाले 5 साल में क्या उसका अमाउंट 10x होता है? आपका क्या टेक है इस पे? सो दिव्या, गोवा में प्रॉपर्टी लेना इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आई वुड से, बिकॉज वहाँ पे पोर्टुगीज लॉ है. आज भी आप अगर गोवा में लैंड लेने जाते हो, आप रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू एंड अप गेटिंग सेटलमेंट लैंड. सो गोवा में आपको क्लीन लैंड मिलना ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज गोवा में लास्ट 75 ईयर्स की चेन देखी जाती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं लीगल में. सो आज की डेट में जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे, बिल्कुल महाराष्ट्र के रीजन में 10 to 15 किलोमीटर्स के रेडियस में, दे आर बाइंग चीप लैंड विच इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट हाफ द प्राइस विच इज इन गोवा. यू गेट सेम कनेक्टिविटी, सेम बीचेस, आपको NH66 की कनेक्टिविटी मिलती है, यू गेट कनेक्टिविटी टू द एयरपोर्ट. आपका अगर हम बीचेस की बात करें, यू गेट वेंगुर्ला बीच, यू गेट आरंबोल, मेंड्रिम. तो आप यहाँ पे आप आराम से पहुँच सकते हैं विद इन लाइक 30-35 मिनट्स. तो आप गोवा में कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं, बीच पे तो प्रॉपर्टी मिलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आज के डेट में. बट अगर आप इन जगहों पे प्रॉपर्टीज लेते हैं, बॉर्डर के आसपास प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वहाँ से आपको सब जगह कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है. जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स आर पुटिंग देयर मनी इन महाराष्ट्र रीजन. दैट्स वेरी ट्रू. स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता है उनको कब कहाँ अपना पैसा लगाना है. बट हेयर आई थिंक वी हैव 2 ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पर मेजरली इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं. इट्स नॉट इवन द एंटायर गोवा, इट्स नॉट इवन द एंटायर महाराष्ट्र. दे मैक्सिमम जो मैं डेवलपमेंट्स देख पा रही हूँ, दैट्स नियर बाय टू द गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर. आपको क्या लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ कितना है रिलेटेड टू द डेवलपमेंट्स, रिलेटेड टू द वहाँ का आसपास का क्या गवर्नमेंट प्लानिंग्स है? आपको क्या लगता है? So there are 3 regions specifically in Maharashtra which are very close to Goa border. So जहाँ से गोवा की कनेक्टिविटी, you are as good as you are in Goa, बस आपका एड्रेस महाराष्ट्र का हो जाता है, सिर्फ ये चेंज आता है. इसमें 3 रीजन में आता है आपका सिंधुदुर्ग, सावंतवाड़ी एंड वेंगुर्ला. सो ये 3 रीजन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. एंड आपको, अगर आपने जैसे प्राइस का पूछा मुझसे कि प्राइस आपको क्या लगता है कितना बढ़ सकता है या कितना हम इन्वेस्टर को रिटर्न दे सकते हैं वहाँ पे. सो अगर हम 5 साल पहले के प्राइसेस चेक करते हैं वहाँ पे, तो लैंड का जो प्राइस था दैट वाज अराउंड 200-300 रुपीज पर स्क्वायर फीट. आज सेम लैंड इज ट्रेडिंग एट अराउंड 3000 to 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. सो 10x का जंप है लास्ट 5 सालों में. सो मैं अगले 5 सालों में एक बहुत डिफरेंट जंप देख रहा हूँ, बिकॉज आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर आया नहीं है, सिर्फ अनाउंस हुआ है. जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, उसके बाद जब हैबिटेशन आएगी, देन यू विल सी द एक्चुअल ग्रोथ. कि मतलब यहाँ पे हमने अगर 3000 रुपये 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये हमारा 5 साल बाद कितना होगा. तो वो यू कैन इमेजिन. आई वोंट गिव अ नंबर, बट यू कैन इमेजिन दैट. फॉर श्योर जिस तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं, इट विल बी गोइंग टू बी अ वेरी गुड नंबर. आपके अकॉर्डिंग स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं आज के टाइम में? सो इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स व्हाट दे आर डूइंग इज, वो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे 10 to 15 किलोमीटर्स के रेडियस में बहुत चीप लैंड बाय कर रहे हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट में बाय कर रहे हैं, एनी लैंड बाय कर रहे हैं. एंड वो लैंड जो कि ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस विच इज़ इन गोवा. सो अगर आप बीचेस के आसपास देखते हैं या फिर कहीं पे भी गोवा की जो प्रोमिनेंट जगह है वहाँ पे प्राइसेस देखते हैं, उससे आपको हाफ से भी कम प्राइसेस में वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं.
तो smart investors are putting their money in those particular pockets, right? So Nishant, जैसे आप गुड़गांव में रहते हो, you have seen all of these developments within these particular years. तो क्या आपको लगता है मोपा को वेस्ट कोस्ट का गुड़गांव कहना सही है? What's your take on this? Sort of. जैसे हमने गुड़गांव का ओरिजिनेशन देखा, गुड़गांव का ओरिजिनेशन हुआ IGA एयरपोर्ट की वजह से. Correct. When Delhi went crowded, दिल्ली में जगह नहीं थी ऑफिस स्पेसेस बनाने की, गुड़गांव में ऑफिस स्पेसेस आए, एयरपोर्ट ऐसी लोकेशन पे आया कि उसके बाद गुड़गांव को उसका बेनिफिट मिला. फिर NH8 का एक्सपेंशन हुआ, देन द्वारका एक्सप्रेसवे पे वी हैव सीन द ग्रोथ. सो सेम लाइंस पे हम मोपा में या फिर गोवा में देख रहे हैं, नॉर्थ गोवा में NH66 से जो कनेक्टिविटी है, विच इज़ अ मुंबई कन्याकुमारी हाईवे. इट्स अ नेशनल हाईवे एंड वेरी इंपॉर्टेंट हाईवे विच कनेक्ट्स कर्नाटका, गोवा, मुंबई एंड कन्याकुमारी टिल कन्याकुमारी. सो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से जो ये बेंगुरला, सावंतवाड़ी और सिंधुदुर्ग वाली बेल्ट की बात कर रहे हैं, इसको बेनिफिट डेफिनेटली होगा. और अगले 4-5 साल में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ के डेमोग्राफिक चेंज होने वाले हैं कम्प्लीटली. So all right, Nishant, now I think we should spice up things, and I'll ask you one phrase and you have to revert me in either one line or one word, right? So Goa or Gurgaon? For now it's Goa because it's a booming real estate market. That sounds great. North Goa or South Goa? North Goa for party and renting, and South Goa for family and peace. I think we are a party lover. Plot or built up villa? Plot. I guess you can build it, whenever you want. Correct. Mopa Airport, it is a game changer or it's just a hype? Total game changer. All right. One should invest for rental or the other one should go for resale? I would suggest rental. That's nice. I think that helps you to create passive income. Right. Hotspot to connect? Vengurla and Arambol belt. Okay. So before winding up this session, I just want you to give our viewers one golden tip. So I won't give a tip, but it's an old saying. Don't wait to buy land. Buy land and then wait. That's very nice. Thank you so much, Nishant, for your fiery insights. It was a pleasure having you on screen with us. We'll hope to see you again. Thank you so much. Thank you. Thank you.